हाँ जी, वेलकम ऑल इन NTSC ਲੈਕਚਰ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਸਾਡਾ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਐਟਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਟਮ ਇਜ਼ ਦਾ smallest particle of the matter which may or may not have independent existence। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਣੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਟਮਸ join to form molecule। For example, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਅਣੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो ये बन गया HCl। ये भी एक परमाणु है तो ये भी एक परमाणु है, तो ये बन गया अणु। सो एटम्स नू आपस दे विच मिला के अणु यानी कि मॉलिक्यूल बनता है। बेटा जिहड़े अणु ने दो तरह के होंदे ने। पहले हैगे होमो एटॉमिक। होमोटॉमिक अणु वो ने जिन्हां विच एक ही प्रकार के एटम होण। तुसीं देख सकते हो इत्थे हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन दोने सेम एटम ने, एक ही प्रकार के, तो इत्थे हाइड्रोजन अणु बन गया। ये अणु किहड़ा? होमो एटॉमिक। वो अणु जिस विच एक ही प्रकार के परमाणु हुंदे हन, एटम्स हुंदे हन। द मॉलिक्यूल विच कंटेन द सेम काइंड ऑफ द एटम्स इज नोन एज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा हुंदा हेटेरोटॉमिक। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। हुण इहदे विच बेटा तुसीं देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन रिएक्ट कर रहा टू फॉर्म HCl। हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, तो जिहड़ा ये मॉलिक्यूल बन रहा है, इहदे विच दो एटम ने, दोने अलग अलग ने, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। तो वह मॉलिक्यूल जिहदे विच दोने एटम अलग होण, दो होण, तीन होण, चार होण, वट एवर द नंबर ऑफ एटम्स, जिन्ने भी एटम्स हैगे ने वो अलग अलग होण, ठीक है। तो उहनूं असीं कहने आ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये सी साडे कोले बेसिक वट इज़ एन एटम एंड वट इज़ अ मॉलिक्यूल, जिदा कि सानू इस लैसन के नाम ने ही सुजैसट किया कि एटम ते मॉलिक्यूल की हुंदे ने। सब तो पहला इन्हां लई जानना जरूरी सी। हुण इस तो बाद बेटा असी पढ़ने लॉज ऑफ कैमिकल कंबीनेशन। लॉज ऑफ कैमिकल कंबीनेशन दे विच साडे कोल सब तो पहला लॉ आउंदा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। कंजरवेशन ऑफ मास यानी कि पुंज संरक्षण नियम। पुंज संरक्षण नियम बहुत ईजी नियम है बेटा, सिंपल। देखो दी डेफिनेशन सुनो। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि मान लो मैं तुहाडे कोल इत्थे कार्बन लिख दिना, एक लिख दिना ऑक्सीजन, ठीक है। इनूं असीं कहने रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक पंजाबी माध्यम दे विच
ਅਭਿਕਾਰਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੋਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ 12, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕ ਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ, 2 ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਤੇ 32 ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਇਹ 44। ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ 12 ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਅਗੇਨ 32, 21 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 44। 44 ਹੀ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਤੇ 44 ਹੀ ਉਧਰ ਆ, ਤੇ ਲਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆ, ਲੱਕੜ ਜਲ ਗਈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਬਚਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਟ ਹੋਲਡ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਉੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਮਾਸ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ? ਲਾ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੰਪੋजिशन। दूसरा नियम है ला ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये भी बड़ा आसान है। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। हाँ जी, ਇਹ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਐਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਤੁਸੀਂ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਆ H2O, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸੋਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਟੈਪ, ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਲ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਰੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ H2O। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਹੈ, that always consist of same kind of atoms joined in a fixed proportion। ਉਹ ਐਟਮ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਨੇ, 2 ਦਾ ਮਾਸ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ 1 ਹੁੰਦਾ, 2 ਐਟਮ ਨੇ, 2 ਦਾ ਮਾਸ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 16। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਈਏ, 1:8 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਬਾਈਨ ਇਨ 1:8 ਇਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਟਰ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੇਨ
सेम काइंड ऑफ दी एटम्स इन सिमिलर प्रोपोर्शन ऑफ दी मास। तो एक मैं थोड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ सुजैसट करूँ बेटा NTSC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ भी कि ਤੁਸੀਂ ना एक एटॉमिक मास ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ। एटॉमिक मास ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਸਟਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਨ ਐਟਮ ਦਾ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1, ਹੀਲੀਅਮ 4, लिथियम 7, बेरिलियम 8, बोरॉन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 18, अगे सोडियम देखो 23, एक मैं मिस कर दिता नियॉन, उसकी कितने ज़्यादा जरूरत नहीं पैनी। तो सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 26, अगे हैगा सिलिकॉन 27, फास्फोरस 30, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटाशियम 39.9, कैल्शियम 40। ਇਹ ਕੁਛ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਵਾਟਰ H2O, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਨੇ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2, ਆਕਸੀਜਨ 1। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ 1 ਹੈ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਾਸ 16। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ 1, 2 × 1, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ 2, प्लस 1 ऑक्सीजन का मास 16, 2 × 1 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 यूनिट। ठीक है, AMU बोल सकते एटॉमिक मास यूनिट, ए दे बराबर साडा आएगा। हुण देखो उस तो बाद मैं सपोज कर लो कार्बन डाइऑक्साइड की गल कर रहा, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, एक कार्बन का मास 12, नोट करो। ऑक्सीजन 2 ने, एक ऑक्सीजन का मास कितना 16, 2 का मास कितना हो जू मल्टीप्लाई बाय 2, एक का 16, 2 का मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 AMU, तो 44 मास। इस तरीके नाल बेटा इस चीज़ को जरूर लर्न कर लियो अपनी कापी उत्ते लिख के, एटॉमिक मास एंड दैन मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का तुसी खुद कैलकुलेट करना। ठीक है, मैं कुछ मॉलिक्यूल तुहानूं लिख दिना, तुसी इन्हां दा मास कैलकुलेट करके सानू ग्रुप दे विच पा देना। ठीक है, मीथेन है, C6H12O6 ग्लूकोज है, C12H22O11 सुक्रोज है, इस तो बाद HCl है, इस तो बाद NaCl है, इस तो बाद साडे कोले CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है। 1 2 3 4 5 6 7 कंपाउंड मैं तुहानूं लिख दिते ने मॉलिक्यूल्स। 7 मॉलिक्यूल का जिहड़ा मॉलिक्यूलर मास आ ऐसे तरीके नाल कैलकुलेट करके तुसी ग्रुप च पा दिओ, मैनू पा दिओ, तो वो तुहाडा चैक हो जाएगा बेटा भी सही किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये मास कैलकुलेट करना जरूरी है, फिर आप इस तो बाद जो टॉपिक है नैक्सट कवर कर पावांगे।
इस तो बाद आपां नैक्सट टॉपिक साडा जिहड़ा है डाल्टन दा परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कहती है, सुनो। डाल्टन के समय जिहड़ा पदार्थ सी वो मन्निया गया सी छोटे छोटे कणों तो बनया होया एटम। एटम वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एट द टाइम ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तो सब तो छोटा पार्टिकल एटम सी। एटम तो अगे जिहड़े छोटे पार्टिकल्स ने इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन्हों की डिस्कवरी हजे नहीं हुई सी। ठीक है, तो पहला पॉइंट सी डाल्टन का। कुछ पॉइंट्स ने डाल्टन की थ्योरी के मैं बोलन जा रहा, तुसीं नोट कर लो, ध्यान नाल सुन लो। पहला पॉइंट सी कि जिहड़ा मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स तो बनया होया है, बहुत छोटे छोटे कणा तो बनया होया है, जिन्होंने असीं परमाणु कहते हाँ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिहड़ा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक। इक्को प्रकार दे एलीमेंट दे एटम इक्को जिहे होणगे। सपोज कर लो तुसी आयरन की गल कर रहे हो, तो आयरन दे विच जिन्ने भी परमाणु ने आयरन दे वो सारे बिल्कुल इक्को जिहे होणगे। आयरन दे मास भी इक्को जिहा होएगा, प्रॉपर्टी भी इक्को जी होएगी, इलैक्ट्रॉन भी इक्को जिहे होणगे, जो भी सी उन्हां दा कैमिकल कंपोजिशन सो कॉल्ड। ठीक है, वो सारे इक्को जिहे होणगे। अगली गल, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। देखो अगर असी अलग अलग एलीमेंट की गल करिए, मैं पिछली एग्जाम्पल तुहाडे नाल आयरन की गल की सी कि कल्ला आयरन आ। हुण मैं आयरन नूं कंपेयर करदा एल्यूमीनियम नाल, आयरन नूं कंपेयर करदा गोल्ड नाल, आयरन नूं कंपेयर करदा सिल्वर नाल। तो दो या दो तो ज़्यादा जिहड़े एलीमेंट्स ने, जिन्ने भी एलीमेंट्स तुसीं गल करोगे, उन्हां सारियां दे जिहड़े एटम्स ने वो डिफरेंट डिफरेंट होणगे। मास डिफरेंट होएगा, साइज डिफरेंट होएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम डिफरेंट होएगा। तो डिफरेंट एलीमेंट के एटम डिफरेंट होणगे, सेम एलीमेंट के एटम सेम होणगे। ये 3 पॉइंट। अगली गल, जदों कोई कैमिकल रिएक्शन होंदी है, चौथा पॉइंट आ, कैमिकल रिएक्शन होंदी है तो एटम्स ही कंबाइन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट सिर्फ यह है कि किसी भी कैमिकल चेंज दे विच, किसी भी कैमिकल रिएक्शन दे विच एटम कंबाइन करते हैं, यानी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन दी कैमिकल रिएक्शन। एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। बेटा उदों ना मॉलिक्यूल नहीं कहन लगे सी, हजे कंपाउंड एटम कहते सी मॉलिक्यूल नूं। यानी जिवें आपां एग्जाम्पल दे दईए कि ये साडे कोल हाइड्रोजन आ, ये साडे कोल ऑक्सीजन आ। ठीक है, तो दोने रिएक्ट करके की बनाउंदे ने, वाटर दा मॉलिक्यूल। असीं हुण मॉलिक्यूल कहने आ, पर उदों ये कहा जाता सीगा कि कंपाउंड एटम बनदा, एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। ये तो खैर फिर भी मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल आ। सिंपल एग्जाम्पल लाओ, जिस तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन सारे मॉलिक्यूल फॉर्म्स ने, तो आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। इत्थे कार्बन एटम एटॉमिक फॉर्म दे विच पई आ कि एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल। अजकल मॉलिक्यूल कहन लगे आपां, हुण उदों कंपाउंड एटम कहा जाता सीगा, बड़े एटम। तो नैक्सट पॉइंट साडा एटम हो चुकिया। डाल्टन की थ्योरी के 4 पॉइंट मेन हो चुके हैं। एक पॉइंट असी होर ऐड कर दें, ये 5th पॉइंट साडे कोल हैगा, किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक संख्या ਅਤੇ किस्मां निश्चित होंदियां हन। वही चीज़ जी तुहानूं पहलां दसी सी कि जिहड़े एटम्स ने, एटम्स कंबाइन इन ए फिक्सड रेशो। एटम किसी भी जो मॉलिक्यूल बनाउण लगदे ने, वो अपनी किसी पर्टिकुलर रेशो दे विच कंबाइन करते हैं और इस चीज़ नूं बनाउण दे लई। सो ये डाल्टन की थ्योरी सी। इस तो एटम की है, मॉलिक्यूल की है, वो असीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास की है, वो असीं पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास। ठीक है,
मैं तुहानूं लिखाते सी, पर एटॉमिक मास की डेफिनेशन जरूर एक बार ध्यान च रख लिओ, क्योंकि एटॉमिक मास की डेफिनेशन थोड़ी जी अलग है और जो प्रैक्टिकल वर्क है वो एक अलग चीज़ है कैलकुलेशन का। एटॉमिक मास परमाणु पुंज, एटॉमिक मास परमाणु पुंज। हाँ जी, तुसीं मैनूं दसो भी जे किसी चीज़ का जिहड़ा पुंज है, भार है, दुकान पर जाके नाप दिओ तो किवें नाप दिओ? तो डेफिनेट जी गल आ कि सर एक पासे असीं बट्टा पाउने आ, दूसरे पासे जिहड़ी चीज़ नापणी आ वो रखदे आ, वो तकड़ी दे विच उहनूं बराबर करदे आ, ठीक है ना। यानी कि साडे कोल कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट हुंदी है जिहदे नाल असीं उहनूं मेजर करदे आ, ठीक है। इस तरीके दे नाल जदों एटम का मास मेजर करना, उहनूं मेजर करन लई भी असीं एक यूनिट रखी गई आ, वो हैगी आ कार्बन का मास। कितना लैंदे कार्बन का मास? 12। तो इस प्रकार आपां एटॉमिक मास नूं जदों डिफाइन करांगे, कार्बन के परमाणु के पुंज के नाल रिलेट करके रिलेटिव मास जिन्होंने असीं कहने वो लवांगे, क्योंकि आप कोई भी जो मेजरमेंट करते हैं रिलेटिव मेजरमेंट ही होंगी आ। इधर 1 किलो का बट्टा पाया, इधर 1 किलो समान पा लिया, तो रिलेटिवली वो मेजर करते हैं, बराबर करते हैं वो। तो उही चीज़ इत्थे होंदी है, कार्बन के परमाणु नाल असीं उहनूं मेजर करांगे। सो किवें मेजर करांगे? वट इज़ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन टेकन एज 12। कार्बन के परमाणु के 1/12वें हिस्से के मास के बराबर जिहड़ा हुंदा किसी भी परमाणु का मास, और वो मास कितना लेना आपां? 12 के बराबर लैके तो उहनूं असीं कहने एटॉमिक मास, ठीक है। तुहाडी पंजाबी मीडियम दे विच डेफिनेशन जिहड़ी हैगी आ, विग्यानक भिन्न तत्तां के परमाणुओं के पुंजां की तुलना करने लई सापेख परमाणु पुंज स्केल की वरतों करते हैं। कार्बन 12 समस्थानक के परमाणु का सापेख पुंज 12 परमाणु के पुंज नाल तुलना करके प्राप्त करते हैं। उही गल होगी कि असीं कार्बन 12 के परमाणु के पुंज के बराबर जिहड़ा पुंज है वो लैके उहदी जिहड़ी तुलना इहदे नाल असीं कर दिंदे हां, ठीक है, अपने परमाणु के पुंज नाल। मैं डेफिनेशन तुहानूं इंग्लिश बोलती कि एटॉमिक मास ऑफ एनी एलीमेंट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम टेकन एज 12, ठीक है। ये डेफिनेशन याद कर लेनी, पढ़ लेनी, ध्यान च रखनी सारिਆਂ ने। इस तरीके नाल बेटा मैं तुहानूं अणु बारे भी दस दिता है भी अणु की हुंदा, वट इज़ मॉलीक्यूल आपां स्टार्टिंग दे विच पढ़ चुके हैं। नैक्सट आ गई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी देखो असीं एग्जाम्पल लई सी पहलां हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एरो H2, फिर मैं एग्जाम्पल लई कार्बन प्लस O2 एरो CO2, फिर असीं एग्जाम्पल लै लैंदे हां किसी होर चीज़ की, जस्ट लाइक C+2H2 एरो CH4। मैं 3 एग्जाम्पल लै दी। मेरे को 3 मॉलीक्यूल बन चुके हैं, हाइड्रोजन मॉलीक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलीक्यूल तो मीथेन मॉलीक्यूल। एटॉमिसिटी की है? किसी भी मॉलीक्यूल दे विच किन्ने एटम्स ने, दैट इज़ एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलीक्यूल। बड़ा ईजी है, इज नोन एज एटॉमिसिटी। चेक करो, हाइड्रोजन मॉलीक्यूल आ, किन्ने एटम ने? 2, पैर च लिखा हुआ। तो हाइड्रोजन मॉलीक्यूल की एटॉमिसिटी 2 आ। तुहानूं एटॉमिसिटी कढ़नी भी आ सकती है पेपर च, एटॉमिसिटी कढ़ी कढ़ाई दी जा सकती है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता कि एटॉमिसिटी कितनी है। तुहानूं ये पता होना चाहिए एटॉमिसिटी है की आ। इहदी एटॉमिसिटी कितनी आ? 1 कार्बन आ बेटा, 2 हाइड्रोजन ने, टोटल कितने हो गए एटम? 3, 1 and 2, एटॉमिसिटी 3। इहदी एटॉमिसिटी देखो नोट करके, CH4 खुद ही दस रहा बई, 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, एटॉमिसिटी 5। इसी प्रकार वड्डे तो वड्डे मॉलीक्यूल की एटॉमिसिटी तुसीं कढ़ सकते हो, जिमें C6H12O6 की एटॉमिसिटी आदि 6, 12, 6, यानी कि 24 एटम्स आर देयर। एटॉमिसिटी इज 24। ये होंदी आ परमाणुता कि किन्ने परमाणु किसी भी अणु दे विच मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। उस तो बाद हैगा जी
आयन, व्हाट इज आयन? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਆਇਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟਮ ਨਿਊਟਰਲ ਆ। 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, प्रोटॉन आर पॉजिटिव चार्ज। अगे है न्यूट्रॉन आर नो चार्ज। तो असी पढ़िया एटम इज इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब की है न्यूट्रल का कि जिन्ना नैगेटिव चार्ज है उन्ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब जे किसी एटम च 10 इलैक्ट्रॉन ने तो 10 ही प्रोटॉन होंगे, 10 नैगेटिव चार्ज वाले ने ना 10 ही पॉजिटिव वाले होंगे। न्यूट्रल -10 +10 बराबर है 0। जे किसी को 20 इलैक्ट्रॉन ने तो 20 ही प्रोटॉन होंगे, -20 +20 0। ठीक है, सो एटम हमेशा न्यूट्रल होंदा। हुण आ गया सवाल आयन की होंदा। अगर असी किसी एटम दे विचों इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव कर दईए जां इलैक्ट्रॉन ऐड कर दईए तो उस एटम उपर चार्ज आ जाता, उसनूं असीं कहने आयन। ठीक है, देखो बेटा प्रोटॉन नूं कदे भी हिला नहीं सकते नॉर्मल मैथड्स दे नाल, ध्यान रखना इस चीज़ का। प्रोटॉन न्यूक्लियस दे विच हुंदे ने, प्रोटॉन नूं असीं नहीं हिला सकते, पॉजिटिवली चार्ज हुंदे आ। असीं जिहड़े इलैक्ट्रॉन बाहर घूम रहे ने उन्हां नूं ऐड भी कर सकते हैं कुछ इलैक्ट्रॉन्स नूं, ते कुछ इलैक्ट्रॉन बाहर रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इलैक्ट्रॉनिक कंसैप्ट है जिहड़ा आयन का कंसैप्ट आ। व्हाट इज आयन? ठीक है, any atom or group of atoms having positive or negative charge due to loss or gain of electrons। आयन की हुंदा बेटा, कोई भी ऐसा परमाणु हुंदा जिहदे उपर धन चार्ज होवे या ऋण चार्ज होवे। ठीक है, वो धन या ऋण चार्ज आउंदा क्यों आ? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। लॉस जां गेन कर लैंदा, जे लॉस करदा तां उहदे उत्ते पॉजिटिव चार्ज आ जू, जे गेन करदा तां उहदे उत्ते नैगेटिव चार्ज आ जू। ठीक है जी, तो उहनूं असीं कहने आयन। आयन बेटा दो तरीके दा हुंदा। आयन इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला, इफ any atom lose electron it get positive charge। जे कोई एटम इलैक्ट्रॉन लूज करता तो उन्हें पॉजिटिव चार्ज उत्ते आ जांदा, एंड इज कॉल्ड CATION कैटायन। तो असीं उहनूं कैटायन कहने। एग्जाम्पल सोडियम है, इन्हें एक इलैक्ट्रॉन लूज करता -1 इलैक्ट्रॉन, इट बिकम Na पॉजिटिव। मैग्नीशियम है, इन्हें 2 इलैक्ट्रॉन लूज करते, इट फॉर्म मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। सिमिलर एल्यूमिनियम है, इट लूजेस 3 इलैक्ट्रॉन, इट बिकम Al3 पॉजिटिव। तो ये सारे की ने बेटा कैटायन। आयन दे ओ पार्ट जिन्हां उपर प्लस चार्ज होवे दे आर नोन एज कैटायन। ठीक है जी। सैकेंड टाइप जिहड़ी है कैटायन तो बाद वो हैगी आ कि जे कोई एटम इलैक्ट्रॉन गेन कर लैंदा, इफ एनी एटम गेन इलैक्ट्रॉन, ठीक है, गेन इलैक्ट्रॉन इट गेट नैगेटिव चार्ज। तो अगर कोई एटम इलैक्ट्रॉन गेन कर लवे तो उहदे किहड़ा चार्ज आंदा? नैगेटिव चार्ज। तो उहनूं असीं कहने एनायन, ANION, एनायन। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल फ्लोरीन है, +1 इलैक्ट्रॉन गेन कर लैंदा तो फ्लोरीन -1 बन गया। मेरे को ऑक्सीजन है, 2 इलैक्ट्रॉन गेन कर लैंदा, O2 नैगेटिव बन गया। ठीक है, मेरे को नाइट्रोजन है, 3 इलैक्ट्रॉन गेन कर गया, N3 नैगेटिव बन चुका।
तो these all are called anions, क्योंकि इन्हां तिन्नां ने इलैक्ट्रॉन गेन कर लए ने और तिन्नां ते नैगेटिव चार्ज आ गया 1 2 3 रिस्पैक्टिवली, और इन्हां नूं आपां कहने आ एनाइन्स। दोबारा फिर सुनो, आयन कोई भी ऐसा एटम है, कोई भी ऐसा एटम का ग्रुप है जिहदे उपर कोई पॉजिटिव या नैगेटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड एनाइन। पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज क्यों होंदा? बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। ਜਿਹੜਾ कोई इलैक्ट्रॉन लॉस करदा, लॉस मतलब लूज करदा, गवाउंदा, ਉਹਨੂੰ पॉजिटिव चार्ज गैट करदा और ਉਹਨੂੰ कहने आ कैटायन। ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रॉन रिसीव करदा, गेन करदा, ਉਹ ਤੇ नैगेटिव चार्ज आ गया, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कहने आ एनाइन। तो ये सीगा बेटा आयन। नैक्सट है साडा टॉपिक वैलेंसी, संयोजकता। कहण नूं यह एक डेफिनेशन आ, पर बहुत वड्डा टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी। सिंपली असी वैलेंसी नूं की कहने आपां कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, किसी भी परमाणु की कंबाइन करन दी शक्ति, कि वह परमाणु किन्ने बंधन बना सकता है, हाउ मैनी बॉन्ड्स दैट एटम कैन मेक इज नोन एज वैलेंसी। डेफिनेशन तो बेटा और समाप्त हो गई है, पर हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी इज अ वाइड कंसैप्ट। इहदे लई तुहानूं पहला मैं दो तरीके दसूँगा कि वैलेंसी किवें कैलकुलेट करनी है। सब तो पहला तुहानूं वही गल अटोमिक नंबर पता होना चाहिए सारिਆਂ ਦੇ एटम्स ਦੇ। अटोमिक नंबर तो बाद आपां नूं पता होना चाहिए कॉन्फिगरेशन, कि शैल कॉन्फिगरेशन किसी भी एटम की किवें लिखनी आ। शैल कॉन्फिगरेशन तो बाद कैलकुलेट होएगी वैलेंसी। ठीक है, आओ देखते हैं। मान लो मेरे को हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। ये मेरे को 10 एटम्स ने। हुण कॉन्फिगरेशन किवें लिखनी आ? कॉन्फिगरेशन च हमेशा बेटा इलैक्ट्रॉन इस ढंग दे नाल आपां डिवाइड करते जाना, 2 8 8 18 2 8 8 18। ठीक है, ये तुसी 10th के लैसन नंबर पीरियोडिक क्लासीफिकेशन दे विच इस चीज़ नूं थोड़ा पढ़ोगे। वड्डियां क्लासां च डिटेल आ जाती है भी की चीज़ आ, क्यों आई है, किस तरह आई है। फिलहाल तुसी ये याद रखना भी जिन्ने भी किसी एटम च इलैक्ट्रॉन हैगे ने उन्होंने इस ढंग नाल वंडदे जाओ। ठीक है, मन लो तुहाडे कोल क्लास दे विच एक लड्डूआं दा डब्बा आ जांदा है ना, तुसी वो सारे बच्चों नूं वंडणे ने। एक पैटर्न तो हुंदा ना, 2-3 क्लासां दे बच्चे बैठे ने, मैं तुहानूं कहदा भी लै भी जिहड़ा 6वीं दा बच्चा उन्हें 1 लड्डू देना। ठीक है, 8वीं वाले नूं 2 दे देने ने, 10वीं वाले नूं 3 दे देने ने। तुसीं उस ढंग नाल डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे, देखोगे भी 6वीं वाला उस पैटर्न च वंडते जाओगे। उही पैटर्न यह है कि फस्ट शैल नूं 2, ये शैल होंदे ने 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, पहले शैल 2 ही इलैक्ट्रॉन पाने ने, जिहड़े वध जांदे ने वो अगले शैल च। अगले शैल तुसीं 8 तक ही पाने ने। ठीक है, 8 जो पूरे हो गए फिर उस तो अगला शैल शुरू कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पूरे हो गए फिर अगला शैल शुरू कर लो, 18 जो 18 पूरे हो गए फिर अगला शुरू कर लो, वो फिर 18। ठीक है, फिलहाल असीं इत्थे तक पढ़ांगे। इहदी कॉन्फिगरेशन आ गई बेटा 1, 1 इलैक्ट्रॉन सी पहले शैल 1 ही आ गया। दूजे की कॉन्फिगरेशन आ गई 2, पहला शैल चल रहा, 2 इलैक्ट्रॉन टोटल सी पहले शैल च आ चुके हैं 2। हुण इहदे कोल इलैक्ट्रॉन ने 3, किन्ने टोटल 3। असीं पहले शैल तो पावांगे 2, बच गए किन्ने 1। 3 दे विचों 2 तो मैं लिखते, क्योंकि 2 तो वध मैं पा नहीं सकता। तो जिहड़ा इलैक्ट्रॉन बच गया वो सैकेंड शैल च, अगले शैल च 2 1। देखो 2 तक 3 3, अगे फिर 2 2 4 हो गए, फिर 2 3 2 4 4 ते 2 6। आ कद तक पाऊंगा मैं? जब तक 8 पूरे नहीं हो जाते। अगे 2 5 2 6 2 7 2 8। हलो
ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਡੀਅਮ 11 ਤਾਂ 2 8 ਦੇਖੋ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2 ਪਾਤੇ ठीक है जी, दूजे 'ਚ 8 पूरे हो गए ठीक है जी, 8 ਤੇ 2 10, इधर किन्ने ने 11, एक वध गया, एक हजे होर बाकी पिया, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ थर्ड शैल 'ਚ पाउणा शुरू कर दो। थर्ड शैल 'ਚ भी कद तक पाउंदे जावांगे जद तक 8 पूरे नहीं हो जाते थर्ड 'ਚ, यानी कि 2 8 8 नहीं हो जाते तद तक आप हुण थर्ड शैल 'ਚ पाउंदे जावांगे जिमें जिमें इलैक्ट्रॉन इनक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न है, तरीका है वैलेंसी नूं कैलकुलेट करन दा, पहला तरीका फर्स्ट मैथड। हुण वैलेंसी किवें कैलकुलेट करांगे आपां? सिंपल जी गल, बाहरला शैल, आ चीज़ याद रखनी जरूर, बाहरला शैल यानी कि इंग्लिश बोलांगे आउटर मोस्ट शैल, आ चीज़ याद रखनी है। बाहरला शैल बेटा किहड़ा हुंदा? राइट हैंड साइड, तुहाडा राइट हैंड साइड का शैल, परले पासे वाला सैल, उधरला सैल। इत्थे एक शैल आ, ये खुद ही बाहरला। ठीक है, जिथे 2 शैल आ गए, ये अंदरला ते ये बाहरला, जिहड़ा मैं राउंड कर रहा वो बाहरला शैल आ। तुहानूं पता लगे गया होगा हुण तां कि आउटर मोस्ट शैल किहड़ा हुंदा, जो राइट हैंड साइड है, दिस इज आउटर मोस्ट शैल। इत्थे जिहड़ा बाहरला शैल आ वो थर्ड बन चुकिया, ना कि सैकेंड। तो बाहरले शैल च जिन्ने इलैक्ट्रॉन ने वो नोट कर लो। ठीक है, पहले च 1 है, दूजे च 2 है, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन ने नोट कर लो। हुण एक फार्मूला अप्लाई करना, अगर तो बाहरले शैल दे विच 1 तो लैके 4 इलैक्ट्रॉन ने, 1 तो लैके 4, तो वैलेंसी सेम आ, जिन्ने इलैक्ट्रॉन ने उन्नी ही वैलेंसी होएगी। समझ गए? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हीलियम की वैसे 0 होंदी आ, पर इतने मुताबिक 2 आऊगी, पर 2 नहीं होंदी। ਉਹਦਾ भी एक रीजन है कि हीलियम एक नोबल गैस है, इसका शैल कंप्लीट हो चुकिया, पहले शैल 2 इलैक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, पहला शैल कंप्लीट हो चुकिया, ये ना इलैक्ट्रॉन लूज करूगी ना गेन करूगी, तो इसकी वैलेंसी 0 रहूगी। अगे देखो लिथियम की वैलेंसी फिर 1, ब्रिलियम की वैलेंसी 2 इलैक्ट्रॉन ने 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4। जब तक इलैक्ट्रॉन 1 तो 4 तक ने, यानी कि 1 2 3 4 तक ने, तो वैलेंसी रिमेन दी सेम, जिन्ने इलैक्ट्रॉन उन्नी ही वैलेंसी। अगर इलैक्ट्रॉन 5 तो लैके 8 तक होण, यानी कि 4 तो वध जाण इलैक्ट्रॉन, 5 होण 6 होण 7 होण 8 होण, फिर वैलेंसी किवें आऊगी? फिर वैलेंसी बेटा कैलकुलेट करांगे, जिन्ने इलैक्ट्रॉन ने उन्हां नूं 8 चों माइनस कर दो। सपोज कर लो इत्थे 5 इलैक्ट्रॉन ने, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 माइनस कर दो, किन्ने आ गए 3, तो इसकी वैलेंसी 3। 8 चों अगे 6 ने ना, 6 माइनस कर दो, वैलेंसी 2, तो वैलेंसी 2, इत्थे 1 आ जाऊगी, 8 चों 7 माइनस किए, 8 चों 8 माइनस किए 0 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी फिर 1, क्योंकि जिन्ने इलैक्ट्रॉन बाहर ने 4 तक, तो उन्नी ही वैलेंसी होंदी है, इलैक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी रिमेन दी सेम 1। इस तरीके नाल तुसीं बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका छोटा जिहा होर आ, उहदे च तुसीं लोइस सिंबल लिख लो, तुहानूं जिहड़ा तरीका अच्छा लगे तुसीं अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लोइस सिंबल किवें लिखना? किसी भी एटम नूं लै लो, मैं सपोज करो लिथियम की एग्जाम्पल लेना, लिथियम बाहरले शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन ने? बाहरला शैल ही लैना। कैमिस्ट्री दे विच बेटा बाहरले शैल की बहुत वड्डी इंपोर्टेंस आ। कीप इन माइंड कि तुसीं किसी होर शैल के उत्ते एक्ट नहीं करना, बाहरले शैल ते ही एक्ट करना, क्योंकि जदों भी इलैक्ट्रॉन कढ़ने या गेन करने लूज करने तो बाहरले शैल नहीं करना हुंदा, अंदरला शैल कंप्लीट हो चुकिया, उन्हें कोई पार्टिसिपेट नहीं करना रिएक्शन दे विच। ये ध्यान रखियो। कई बच्चे टोटल इलैक्ट्रॉन ले लेंदे ने, 2 ते 3 ले लैणगे, ठीक है ना, कुछ तुसीं नोट ये करना भी तुहाडे जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन साडे बाहरले शैल च ने उन्हां दे उत्ते तुसीं एक्ट करना। ठीक है, तो लिथियम के बाहर शैल इलैक्ट्रॉन कितने ने? 2 सॉरी 1, तो ये उपर एक स्टार पा दो, काटी पा दो। चलो ब्रिलियम बाहर शैल कितने ने? 2 1 2, अलग अलग क्रॉस करते जाओ चारे दिशावां च, उपर नीचे खब्बे सज्जे, तुसीं इस तरीके नाल एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, आई थिंक वधिया रहूगा। तो बोरॉन कितने इलैक्ट्रॉन ने? 3, बाहरले शैल 3, 3 काटियां ला दो, 1 2 3,
ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 1 2 3 4 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 5 ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ 1 2 3 4 4 ਲੱਗ ਗਿਆ 5ਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 6 ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਨਪੇਅਰਡ ਪਏ ਨੇ ਉਹੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਥੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਉਹੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਬਰੀਲੀਅਮ 'ਚ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਬੋਰੋਨ 'ਚ 1 2 3 ਅਨਪੇਅਰਡ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸੀ 3 ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਨੇ 4 ਵੈਲੈਂਸੀ 4 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਉੱਪਰ 1 2 3 ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਪੇਅਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ 3 ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ ਸਿਰਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਅਨਪੇਅਰਡ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 2 ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 3 ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਲੂਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਐਟਮ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਤੇ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਲੰਬੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ NTSC ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਯੋਗਕਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ